આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. હું છું આપની સાથે માનસી રોહિત. આજરોજ એમએસ યુનિવર્સિટીના બીબીએ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન દ્વારા સંકલ્પ 22નું ભવ્ય લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું અને આ બનાવને સમૃદ્ધ બનાવતા મુખ્ય મહેમાન શ્રી અમન વર્માની અધ્યક્ષતામાં સાથે જ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના પ્રેરક શબ્દો દ્વારા શ્રોતાઓને સંબોધવામાં આવ્યા અને સંકલ્પ 22 રિવાઇવલ રેલી ટુવર્ડ્સ બાઉન્સિંગ બેક થીમ સાથે આજે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ માર્કેટિંગ વિજેતાઓને ટ્રોફીનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું અને વિદ્યાર્થીઓએ શ્રી અમન વર્મા દ્વારા આયોજિત મનોરંજન અને ઇન્ટરેક્ટિવ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો અને આકર્ષક ઇનામો જીત્યા. આ ઇવેન્ટ એક પ્લેટફોર્મ તરીકે સેવા આપી હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ તેમની મહેનત માટે પ્રમાણપત્રો મેળવ્યા. એકંદરે તે એક અદ્ભુત મનોરંજક, ઉત્તેજક અને ગતિશીલ ઘટના હતી. સમર્થ પારેખ કે જેઓ પ્રમુખ બીબીએ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન અને વૃષ્ટિ ભાનુશાલી કે જેઓ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બીબીએ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશનના છે, તેઓ દ્વારા વધુ માહિતી આપવામાં આવી. આજે એમએસયુ બીબીએ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન દ્વારા સંકલ્પ મેગેઝિન, જે અમારી એન્યુઅલ મેગેઝિન છે, તેનું ગ્રાન્ડ લોન્ચ ઇવેન્ટ આજે ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ચીફ ગેસ્ટ તરીકે મિસ્ટર અમન વર્મા, જે બાગબાન, તીસમાર ખાન, જસ્સી જસ્સી કોઈની, સીઆઈડી એવા ઘણા બધા વિવિધ ટીવી અને ફિલ્મોમાં પણ તે આવ્યા છે, એવા અમન વર્મા અમારા આજે ચીફ ગેસ્ટ છે. અને આજે સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન, બીબીએ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશન દ્વારા આ મેગેઝિન, જે છેલ્લા અમે 20 વર્ષથી પણ વધારે વર્ષથી અમે દર વર્ષે ઘણા બધા એડિશન્સ મેગેઝિનના પબ્લિશ કરતા હોઈએ છીએ, તેથી આજે સંકલ્પની 22મી એડિશનનું આજે લોન્ચ ઇવેન્ટ છે, તો તેના માટે આજે અમે સૌ ભેગા થયા છે. શું નામ છે? મારું નામ સમર્થ પારેખ છે. હું બીબીએ સ્ટુડન્ટ એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ છું. મારું નામ પૂજા ગોયલ છે. હું કરન્ટલી એલ્યુમનાઈ સ્ટુડન્ટ્સ એસોસિએશન, જે બીબીએનું જે એક પાર્ટ છે, જે પાસ આઉટ થયા છે બીબીએમાંથી, એના કમિટીની હું કરન્ટલી વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું. સંકલ્પ લોન્ચ મેગઝીન 22 યર્સ થયા છે અને ધીસ ઇઝ ધ 22nd યર ફોર ધ લોન્ચ ઓફ સંકલ્પ મેગઝીન. એન્ડ વાય ઇઝ ઇટ સ્પેશિયલ ઇઝ બિકોઝ આ જે મેગઝીન છે એની ડિઝાઇનિંગથી લઈને એના આર્ટિકલ્સ, એના માટે લોન્ચ માટે માર્કેટિંગ, આર્ટિકલ્સ રાઇટ કરવાનું બધું જ બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ, બીબીએના સ્ટુડન્ટ્સ કરે છે. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી પ્રેશિયસ એન્ડ ઇટ્સ અ વેરી મેમોરેબલ ઇવેન્ટ ફોર ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓફ બીબીએ. અને સિન્સ પાસ્ટ મેની યર્સ વેરી પ્રોમિનન્ટ પર્સનાલિટીઝ હેવ કમ ફોર ધ લોન્ચ. એટલે પહેલાં આપણે જોવા જઈએ તો શોભા ડે મેમ આવ્યા હતા, પછી સુધીર તેલંગ બી એક વર્ષે આવ્યા હતા, એન્ડ ધીસ યર વી હેવ મિસ્ટર અમન વર્મા ફોર ધ લોન્ચ. સો ઇટ્સ અ બિગ ઇવેન્ટ ફોર BBA and BBA Students Association. The students have worked really hard for it and we hope everybody enjoys the function. Thank you so much. बहुत बढ़िया है. आई थिंक हम लोग इतने सारे इवेंट्स करते हैं जिसमें हमें शादी पे जाना होता है, एंटरटेन करने के लिए जाना होता है, होस्टिंग के लिए जाना होता है, सगाई होती है, किसी कंपनी के डीलर मीट के लिए जाना होता है. So after a very long time I've been given this opportunity to come to Baroda and be a part of an educational institution. So for me it came as a pleasant surprise. लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि कॉलेज के इतने यंग जो बच्चे हैं उनके साथ आज इंटरेक्शन होगा, उनसे बात होगी. एंड आई विश द कॉलेज एंड एवरीबडी एल्स द वेरी बेस्ट ऑफ लक. एंड आई होप कि ये जो MSU BBA का जो कोर्स है, सारे के सारे स्टूडेंट्स अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतरीन और बढ़िया करें. सर, बड़ौदा पहले भी आप आ चुके हैं और अभी आए हैं, क्या बड़ौदा में क्या अच्छा लगता है? भाई मैं बहुत पहले आया था और उस समय भी मैं काम कर रहा था. आज भी आया हूँ तो काम के लिए आया हूँ. बट आई थिंक व्हेन आई वाज लैंडिंग इन बड़ौदा yesterday evening, so I could see कि जो physically there has been a lot of change in the city. आज रात को या कल मुझे बाहर जाने का थोड़ा मौका मिलेगा, तो आई थिंक यहाँ पे आपका कोई लक्ष्मी पैलेस है जो सुना है मैंने, तो मैं कोशिश करूँगा उसे जाके देखूँ. बट सुंदर था, खूबसूरत था, और सबसे बढ़िया बात है कि जहाँ पे भी मैंने ड्राइव करते हुए आया, शहर जो है बहुत साफ था, सुथरा था. सो आई थिंक दैट शोज़ दैट एवरीबडी इन द सिटी इज़ मेकिंग द एफर्ट टू कीप द सिटी क्लीन. और क्या है कि हम लोग तो मुंबई से हैं, हमें तो कोई भी शहर मुंबई से ज़्यादा साफ लगता ही है. सर, बॉलीवुड से आप काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं जी, साथ में टॉलीवुड भी आपका एक प्लेटफॉर्म रहा है, तो दोनों में कैसा सफ़र रहा आपका? बल 24 साल 25 साल हो गए हैं, और इतने सालों के बाद आज भी लोग मुझे बुला रहे हैं इवेंट्स के लिए, शोज़ के लिए, तो कहीं पे भी शायद थोड़ा बहुत अच्छा काम किया होगा.
शायद लोगों की नज़रों में, उनके दिमाग में, उनके जहन में कहीं मैं बैठा हूँगा, जिसकी वजह से आज मुझे इतने सालों के बाद भी, मामूली क्या होता है टेलीविज़न या फिल्म्स के अंदर, एक ज़्यादातर एक एक्टर की लाइफ 5 से 10 साल होती है, अनलेस आप एक्सेप्शनली बहुत ही कमाल के एक्टर क्यों ना हो या आपका कनेक्शन इंडस्ट्री में बढ़िया क्यों ना हो। सो बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी जान पहचान के 24-25 साल से चल रहे हैं, आज भी बुलाया जा रहा है, आज यहाँ पे हैं, कल कहीं और जाना है। सो आई एम हैप्पी, आई थैंक गॉड फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू मी। कुछ सर, नया मूवी प्रोजेक्ट है लेके भी आप आ और रहे हैं। वेब सीरीज को आप कैसे देख रहे हो? यंगस्टर वेब सीरीज की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मूवी भी 3 घंटे की होती है, ये 6-7 घंटे हो जाते हैं जी। और इंटरेस्टेड होती है, उसको आप किस नज़र से देखते आई थिंक समय के साथ सब बदलता है हैं? जी सर। और कुछ साल पहले वेब सीरीज़ शुरू हुई हैं, उससे कुछ साल पहले 15-20 साल पहले टेलीविज़न शुरू हुआ था, जो प्राइवेट चैनल्स हैं, उससे पहले दूरदर्शन हुआ करता था। तो मेरे हिसाब से समय समय पर चीज़ें बदली जाएंगी। अब आज वेब पॉपुलर है, 5 साल के बाद कुछ और पॉपुलर हो जाएगा, और कुछ ज़माने के बाद मुझे लगता है कि टीवी तो होगा नहीं, ये जो हाथ में आपके एक छोटा सा मोबाइल है, इसी में सारी दुनिया चल रही होगी। सर, जैसे कि अभी केरल मूवी आई है और खास करके कश्मीर फाइल के ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ, तो आपको लग रहा है ये जो स्टोरियाँ बनाई जा रही हैं, एक नया ट्रेंड चला है? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से फिल्में रियल लाइफ से उठाई जाती हैं, और रियल लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स कभी कभी देखा जाता है कि वो फिल्मों से भी लिए जाते हैं। अब ये असली है या नहीं है, ये जो मेकर्स हैं वही बता पाएंगे, एंड बिकॉज वी डोंट हैव एनी अथॉरिटी कि हमारे पास ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं जो ये ठप्पा या सर्टिफाई कर दे कि ये कहानी सही है। सो उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट फिल्म अच्छी बनी है, और जो माहौल उसके अंदर दिखाया है, अगर वो हमारे देश में हो रहा है या आगे होने वाला है या अब तक चलता आया है, तो मेरे हिसाब से बड़ी गंभीर समस्या है और उसे जल्दी ही रोकना पड़ेगा। और बहुत कुछ जो दिखाया है, क्योंकि हम अक्सर सुनते रहते हैं, लोगों से पता लगता है, और हमारे देश में क्या है कि हर कोने में अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रांत से हैं, अलग अलग रिलीजन से हैं, वेशभूषा जो है वो अलग है, पहनावा अलग है, सबकी सोच अलग है। तो हो सकता है कि जो इंसान नॉर्थ इंडिया में कुछ सोच रहा हो, वो शायद पश्चिम भारत के अंदर उसे वो बात पसंद ना हो, बट यही हमारे देश को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाता है कि इतने सारे लोग होने के बावजूद हम फिर भी एक तरह से इकट्ठा हैं। सर, नया प्रोजेक्ट कुछ लेके आ रहे हैं आप, बोले? अभी आई थिंक फ़िलहाल मेरा एक शो स्टार भारत पे चल रहा है धीरे धीरे से, तो एक वो प्रोजेक्ट है। उसके अलावा एक वेब सीरीज़ है जो स्कैम हंसल मेहता के साथ जो हिट हुआ था, तो उसका जो सेकंड पोर्शन है वो अभी जल्द आने वाला है, तो उसमें भी एक तरह से मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल या पात्र है। तो फ़िलहाल ये 2 चीज़ें हैं, और बाकी इवेंट्स और शोज़ इस चक्कर में तो मैं ट्रैवल करता ही रहता हूँ। संकल्प के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो युवाओं को जोड़ता है, और ये अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे? बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है, और सबसे बड़ी बात है कि जितने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मिल के ये सब कुछ किया है, तो इससे काबिल तारीफ बात क्या हो सकती है कि आप यू आर ऑल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 22-23, और सब कुछ आप खुद कर रहे हैं। सो अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू द इंस्टीट्यूशन, बेस्ट ऑफ लक टू संकल्प एंड ऑल द पीपल बिहाइंड संकल्प। सर, इनका कपूर के साथ में जो सीरियल में काम करके आपकी पहचान बनाई, फिर आपके ऊपर गंभीर आरोप लगने से आपके काम में ब्रेक लग गया था, वो क्या था पूरा? कोई ना मुझे कहीं पे ब्रेक लगा है। आज भी मेरे साथ के जितने भी मेरे एक्टर्स हैं, आप मुझे बता दीजिए उनमें से कौन कितना कहाँ काम कर रहा हो और कौन मेरी तरह दिखता है। आप 20-22 साल 24 साल पहले की बात कर रहे हैं, आप सब लोग बड़े हो गए होंगे, लेकिन मैं जहाँ का हूँ वहाँ का वहीं हूँ। सही है।